अभी मैं प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी को ही आमंत्रित करता हूं, वो अपना जो चेयरपर्सन भाषण करें। प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रेमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। Respected Professor Ravi Prakash Areji and the esteemed scholars present in this session, and my colleague, the respected co-chairperson Komal Chand Radhakishanji, and the participants in this particular session, I welcome you all and extend my pranamas from Kashi, Varanasi, a great seat of scholars where Dayananda Saraswati ji came to have discussions and Shastrarth with the Sanskrit scholars. And that was a historic moment for all the people, all the scholars of the Kashi, and it is still remembered. So far as Dayananda Saraswati is concerned, he was having a very little and limited span of life. He lived for about 59 years, I think. So, but what he gave to this country is unparalleled. He was a great reformer. And above all, the thing which we shall always remember is that he was the first person in the entire Indian movement of the Indian independence to give a call for Swaraj. That was the great thing that he gave to the Indian movement of the independence. He said that India for Indians, and that was the first call that he gave before British government, India for Indians. So he was a great reformer, he was a great leader of the Indian independence, and above all, a great Sanskrit scholar. He belonged to a Brahmin family, but what he did, he made the interpretations of the Sanskrit, of the Vedic texts in a universally renowned form that can be accepted for ages. There is no controversy at all. And that was a great challenge for him because there were about 16 scholars, interpreters of the Vedic texts before him. And accepting that challenge, even after having 16 traditions or 16 scholars of the Vedic interpretations, Vedic interpreters, he decided to make a fresh interpretation of the Vedic texts. And those interpretations are still widely read all over the world and are universally accepted. This is the thing that we still remember. So far as the life of Dayananda Saraswati ji is concerned, we shall always read his life history. He went all around India in search of the truth. And ultimately he reached Mathura and found his guru, Virzananda ji. So Virzananda ji asked him to move to the Vedas and try to derive the truth from there. And that was the turning point in his life. And then he went towards the Vedas and studied and made a fresh interpretation. And it is widely acclaimed, it is widely accepted, widely read, and there are a number of universities within India and even outside the India. And Professor Ravi Prakash Areji mentioned those places where the Dayananda Saraswati chair and the study on the text of Dayananda Saraswati are being done. And above all, वैदिक सिद्धांतों के अध्ययन और अध्यापनों के लिए दयानंद सरस्वती जी ने गुरुकुल की स्थापना की। और ये
आज की आवश्यकता है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। गुरुकुल की स्थापना, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जिस पर सबसे अधिक विदेशियों ने आक्रमण किया और जिसके विषय में धर्मपाल जी का जो अध्ययन है, वो धर्मपाल जी का अध्ययन एक मानक अध्ययन है कि भारतवर्ष का जो शिक्षा का वृक्ष था, स्वर्णिम वृक्ष था, उसकी जड़ें विदेशियों ने खोद दी और खुली छोड़ दी सूखने के लिए। तो जड़ों को खोदने का तात्पर्य क्या है? जड़ों को खोदने का तात्पर्य है कि उसके मूल में जो हमारी पारंपरिक विद्या थी, हमारा पारंपरिक ज्ञान था, जिसको बल दिया दयानंद सरस्वती जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से, वो समाप्त हो गया। तो आज की जो हमारी यह संगोष्ठी है, जिसका विषय है कॉन्टेम्पररी एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, तो इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी। हमारे यहाँ कभी भी किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से जुड़कर इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी। हमारे यहाँ जो भी शिक्षा दी जाती थी वो गुरुओं के माध्यम से दी जाती थी, और विद्यार्थी का आकलन करने के बाद उसको समाज में छोड़ने के योग्य, समाज में भेजने के योग्य जब गुरु मान लेता था कि हाँ ये समाज में जाने योग्य है, तो उसको प्रस्थान का अवसर देता था। तो यही महर्षि दयानंद जी के साथ हुआ। वो विरजानंद जी के संपर्क में आए, उनसे मिले, उनके शिष्य बने और उनसे वेदाध्ययन का उपदेश प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उन्होंने भारतवर्ष में सामाजिक समानता का सिद्धांत दिया, स्त्रियों की उन्नति का सिद्धांत दिया, जिस पर एक शोध पत्र विक्रम शेखावत जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पशु बलि है, नर बलि है, जितनी भी प्रकार की वेद से जोड़कर अंधविश्वास प्रचलित हो गए थे समाज में, उन सब का उन्होंने विरोध किया। और एक बात और है कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय, तो उनके नाम पर इस प्रकार के एक विद्यालय की भी स्थापना हुई थी। तो दो बातें उन्होंने जो महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्र को दी वो थी टू गो बैक टू वेदास, हमें वेदों तक जाना पड़ेगा और वहां से हमें आत्मसम्मान और जो पुनर्जागरण है, पहला तो आत्मसम्मान और पुनर्जागरण की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हम प्रभावित हो चुके थे पाश्चात्यों से। तो हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण, इन दोनों का हमें इसकी पहचान करने के लिए, इसकी प्राप्ति करने के लिए हमें टू गो बैक टू वेदास, हमें वेदों की ओर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने जो उस समय कही, जो कि शासकीय सत्ता के लिए थी, तत्कालीन विदेशी शासकीय सत्ता के लिए थी, वो उन्होंने कहा कि इंडिया फॉर इंडियंस। इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिए कि दयानंद सरस्वत्याः पारम वेत्ति सरस्वती, दयानंद सरस्वत्याः पारम वेत्ति सरस्वती, सरस्वत्याः परम पारम दयानंद सरस्वती। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो साक्षात भगवती सरस्वती की कृपा उनके ऊपर थी और वो उन्होंने अपनी उपासना से, अपनी तपश्चर्या से अर्जित किया था। अब जहां तक प्रश्न उनके द्वारा किए गए कार्यों का है और वेद की संरक्षण, वेद के प्रचार प्रसार के लिए है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिः धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः, ये हमारे यहाँ प्रातिशाख्य ग्रंथों में कहा गया है। और प्रातिशाख्य, सर्वानुक्रमणी, आचार्य कात्यायन की बृहद देवता, निरुक्त, निघंटु, ये सब उपस्थित थे। और इसके अतिरिक्त उवच, महीधर, भट्टभास्कर, वरुचि, हरिस्वामी, वेंकट माधव, आत्मानंद और सायण इत्यादि के भाष्य भी उपस्थित थे। और इसके अतिरिक्त जो वेद की भाष्य की पद्धतियां थी, जैसे नैरुक्त पद्धति, वैयाकरणों की पद्धति, चत्वारि वाक् परिमिता पदानी, आर्ष पद्धति जिसमें ओंकार और तीन व्याहृतियों को महत्व दिया गया, भूर्भुवस्वः, याज्ञिक पद्धति, परिव्राजक पद्धति,
ये जितनी भी हमारी वैदिक व्याख्यान की पद्धति है, सारी पद्धतियां उपलब्ध थी, लेकिन इसके उपरांत भी उनको वेद पर भाष्य लिखने की आवश्यकता पड़ी। और वेद पर जो भाष्य उन्होंने लिखा उसका उद्देश्य था सत्यार्थ प्रकाश, अर्थात जो परम सत्य है उस परम सत्य के अर्थ का प्रकाशन करना। और एक स्वतंत्र ग्रंथ उनका हिंदी में जो प्रकाशित है वो लिखा, हमारे मध्य प्रचलित है और आज उस पर बहुत विचार भी हुआ, उसके सिद्धांतों पर, उसको कैसे हम आज की शिक्षा पद्धति में इंट्रोड्यूस करें, उसको आज हम कैसे इस शिक्षा पद्धति में अपना, इस पर बहुत अधिक विचार हुआ। तो उन्होंने जो आपका ऋग्वेद भाष्य भूमिका है उसके प्रारंभ में ही कहा, ये नाधुनिक भाष्य ही ये टीका भी वेद दूषकाः दोषा सर्वे विनश्येयुः अन्यथार्थ विवर्णनाः सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः। वेदानां यः सनातनः सत्यार्थः सचासौ सत्यार्थः प्रकाश्येत। इस उद्देश्य से मैं इसकी रचना कर रहा हूं। लेकिन इसमें मेरा उद्देश्य क्या है? ये नाधुनिक भाष्य ही ये टीका भी वेद दूषकाः। तो आधुनिक जो भाष्यकार हैं और आधुनिक जो टीकाकार हैं जिन्होंने वेद के वास्तविक अर्थ को समाज तक जाने में रोका या समाज तक जाने से जिन्होंने उसको दूषित किया, और दोषा सर्वे विनश्येयुः अन्यथार्थ विवर्णना। हाँ, अन्यथार्थ विवर्णना का अर्थ है कि जो वास्तविक अर्थ है वहां पर ऋषि मंत्र देवता इत्यादि के आधार पर जो अर्थ है वहां पर, या जो प्रकरण से लब्ध अर्थ है और जो हमारे व्याकरण महाभाष्य इत्यादि से समर्थित अर्थ, इन सबको देखा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि किसी भी शास्त्रीय विधि के विरोध में थे दयानंद जी। दयानंद जी ने व्याकरण इत्यादि जितनी भी निरुक्त इत्यादि से जुड़ी हुई जो भी पद्धतियां सी उन सबको देखा और उसके आगे का कार्य किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल वेद को ही नहीं देखा, वेद से जुड़े हुए जितने भी प्रातिशाख्य इत्यादि ग्रंथ थे उन सब ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर उसके भाष्य में प्रवृत्त हुए। तो वेद का जो वास्तविक अर्थ है, उन शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है जो समाज तक पहुंचना चाहिए और समाज उसकी ओर अनुप्रेरित होकर उसके प्रति श्रद्धा भाव से प्रवृत्त हो, ये उनका बहुत बड़ा एक अवदान था। इसके बाद वो कहते हैं आर्याणाम मुन ऋषिणाम या व्याख्या रीति सनातनी। तो मुनियों की और ऋषियों की जो सनातनी व्याख्या रीति ही है, ताम समाश्रित्य मंत्रार्थाः विधास्यन्ते तु नान्यथा। इस प्रतिज्ञा पर ध्यान दीजिए आप। तो ताम रीतिम समाश्रित्य, या रीति ही सनातनी वर्तते, अस्माकीना वर्तते प्राचीना मुनीनां ऋषीणां च ताम रीतिम समाश्रित्य अत्र मंत्रार्थाः विधास्यन्ते। हम यहाँ पर मंत्रों का अर्थ करने जा रहे हैं। न तु नान्यथा, अन्यथा अन्य प्रकारेण अस्माभिः मंत्रार्थाः न विधास्यन्ते। हम किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर या किसी अव्युत्पत्ति से प्रेरित होकर इन मंत्रों का कार्य नहीं करेंगे। हमारे जो भी वचन हैं वो सारे के सारे वचन हमारे प्रामाणिक होंगे। इन बातों को देखकर महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा, और वह भाष्य हमारे हिसाब से शास्त्रीय भाष्य है, उसका अनुपालन करना चाहिए। उसको उनकी सामाजिक सुधार की जो उपाय थे या सामाजिक समरसता के उपाय थे, उन उपायों से जोड़कर उसको नहीं देखना चाहिए। उसमें उनकी जो विद्वत्ता है, उन्होंने जो एक विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखा, उस पर हमें विचार करना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, ये बड़ा प्रसिद्ध वचन है। लेकिन जहां तक पुराणों का प्रश्न है, पुराणों से सहमत नहीं थे आपके महर्षि दयानंद जी। लेकिन फिर भी जो परवर्ती जितने भी ग्रंथ हैं, मनुस्मृतियां हैं इत्यादि जितनी भी हैं, धर्मशास्त्र जितने भी हैं, सारे के सारे धर्मशास्त्र वेदों से ही ऊर्जा प्राप्त करके उनकी सरल पद्धति में लोक तक पहुंचाने का उपाय करते हैं। और यही कार्य महर्षि दयानंद जी ने अपने भाष्य के माध्यम से किया। उन्होंने एक देवता माना
और परंपरा की दृष्टि से आप देखें तो वेद को एक शब्दराशि माना गया है। 4 वेदों की परिकल्पना पहले नहीं थी, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इसका जो एटर्नल डिवीजन था, उस एटर्नल डिवीजन को 4 डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, he tried to logically interpret it. उसका एक तार्किक समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऋक, यजुः, साम और अथर्व, ये 4 संहिताएं थी। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको हमारे यहाँ अपौरुषेय माना गया है। इनके रचयिता पुरुष नहीं है, उपनिषद पर्यंत का जो भाग है। लेकिन ब्राह्मण को लेकर आपके महर्षि दयानंद जी का उतनी सहमति नहीं थी। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम् उपायं यो वेद वेदयति सो वेदः, उसह वेदः, उसको वेद कहते हैं। तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार का जो अलौकिक उपाय है, अलौकिक उपाय का अर्थ है कि लौकिक उपाय उसकी प्राप्ति में साधन नहीं बनते। तो इन सब सिद्धांतों को उन्होंने ध्यान में रखकर वेद का निर्वचन किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, तो हमारे यहाँ जो धर्म के अंग हैं, उन धर्म के अंगों में ये सब का सब समाहित हो जाता है। तो ज्ञान निहित है किसमें? तो रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, वी कैन हैव द रियलाइजेशन ऑफ द नॉलेज बाय मींस ऑफ ऋग्वेद। और दूसरा है कर्म, रियलाइजेशन ऑफ कर्म, दैट इज एक्शन, कि वस्तुतः सही कर्म क्या है। तो उसके लिए उन्होंने यजुर्वेद को माना। उपासना के लिए कॉमन यूनियन विद गॉड, तो ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, ये भक्त का बहुत बड़ा लक्षण है। अर्थात प्रपत्ति योग इसको हमारे यहाँ कहा गया है। अर्थात संपूर्ण अहंकार का परित्याग करके प्रभु की शरणागति में पहुंच जाना। तो इसको, उपासना को आप प्राप्त कर सकते हैं सामवेद से। और जहाँ तक प्रश्न है एब्सोल्यूट नॉलेज या विज्ञान का, तो विज्ञान के लिए उन्होंने अथर्ववेद को माना, जिसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ साइंसेस हैं। तो ऋग्वेद में आपकी सभी प्रकार का ज्ञान है, यजुर्वेद में आपकी ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, सामवेद में आपकी वर्शिप है, और अथर्ववेद में आपकी ऑल टाइप्स ऑफ साइंसेस है। तो ये सब जो बातें थी तार्किक रूप से उन्होंने प्रस्तुत की। और मैंने देखा उनके ऋग्वेद भाष्य भूमिका के भाष्य को जब देखा, तो मैंने देखा, पाया कि जो हमारे यहाँ धर्म का सर्वमान्य लक्षण है, यतोऽभ्युदयो निःश्रेयस हेतु सधर्मः, यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, एक तो ये पाठ मिलता है। लेकिन दूसरा पाठ मिलता है यतोऽभ्युदयः निःश्रेयस हेतु सधर्मः। ये पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हमको बताते थे कि हेमाद्रि ने रघुवंश दर्पण पर जब व्याख्यान लिखा, तो वहां पर उन्होंने वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होने वाले इस धर्म के लक्षण को इस रूप में प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दोनों अभ्यर्हित है। और यही महर्षि दयानंद जी कहते थे कि हमारे यहाँ दोनों अनिवार्य हैं, अभ्युदय भी अनिवार्य है और निःश्रेयस भी अनिवार्य है। अभ्युदय में आ जाती हैं सारी की सारी अपरा विद्याएं, और निःश्रेयस में आ जाती है आपकी परा विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या। तो निःश्रेयस को लक्ष्य करके प्राप्त किया गया अभ्युदय, अभ्युदय से तात्पर्य है सांसारिक अभ्युन्नति, वो हमेशा हितकर ही होती है। ये हमारा जीवन दर्शन था और यही हमारा धर्म था। इसमें किसी उपासना पद्धति का कोई विरोध नहीं है, ये सर्वमान्य है। तो इसको महर्षि दयानंद जी ने स्वीकार किया कि यतोऽभ्युदयो निःश्रेयस हेतु, तो यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। यदि आप ऐसा मानते हैं तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों अभ्यर्हित नहीं होंगे, दोनों अनिवार्य नहीं होंगे। लेकिन यदि आप अभ्युदय को निःश्रेयस का कारण बना देते हैं, मुक्ति का कारण बना देते हैं, तो वहां पर अभ्युदय भी अनिवार्य है और निःश्रेयस भी अनिवार्य है। और निःश्रेयस पर दृष्टि रख कर किया गया जो अभ्युदय है, वो निश्चित ही आपकी मुक्ति का साधन बनेगा। देखिए, वाल्मीकि रामायण में ये दोनों चीजें प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या में ये पक्ष है कि अभ्युदय निःश्रेयस को लक्ष्य करके प्राप्त किया गया,
लेकिन जहां तक प्रश्न है पुलस्त्य वंश का या रावण का, तो वहां पर अभ्युदय निश्रेयस को लक्ष्य करके नहीं प्राप्त किया गया था, इसीलिए उसका विनाश हुआ। तो रावण के विनाश का एकमात्र कारण था कि उसने निश्रेयस को लक्ष्य करके अभ्युदय की प्राप्ति नहीं की। तो ये बात हम महर्षि दयानंद जी से प्राप्त करते। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा उसमें यह है कि पराच अपराच द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये हमारे यहाँ वेद का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, उपनिषदों का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। इसमें आप अपरा शब्द पर ध्यान दीजिए। अपरा शब्द में जो अ लगा हुआ है उसका अर्थ न परा नहीं है, निषेध अर्थ नहीं है। परा का अर्थ है ब्रह्म विद्या, और अपरा का अर्थ न परा ऐसा मत कीजिए। अपरा में नए जो आया है वो सदृश अर्थ में आया है। नए किस अर्थ में आया है? नए आया है सदृश अर्थ में, क्योंकि मैं साहित्य शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत पोएटिक्स और साहित्य पे काम किया है मैंने। तो जब हम साहित्य में विचार करते हैं तो वहां पे नए के 6 अर्थ माने गए हैं। तत्सादृश्यम, तदन्यत्वम, तदल्पत्वम, विरोधिता और नयर्थाः षट प्रकीर्तिताः। तो नए का एक अर्थ वहां पर सदृश भी है। तो अपरा शब्द का अर्थ यदि आप कर लें परा सदृश, तो जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं, जितनी भी भौतिक अभ्युन्नति है हमारी, वो सारी की सारी भौतिक अभ्युन्नति एक अध्यात्म पर प्रतिष्ठित होकर होगी। और कभी भी हम अपने जीवन से जीवन से विचलित नहीं होंगे, जीवन से हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। जो हमारे यहाँ एक निश्चित मार्ग है, उस निश्चित मार्ग पर चलकर हम जीवन को व्यतीत करेंगे। शिक्षा की बात हमारे यहाँ हुई, तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे आदर्श हैं, और जैसा लक्ष्य और जीवन महर्षि दयानंद सरस्वती का था, वैसा ही दर्श और जीवन स्वामी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी था। उन्होंने भी राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया। और कैसी शिक्षा? आचरण पूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो सदाचार पर प्रतिष्ठित हो, जो सदाचार पूर्ण जीवन को व्यतीत करने का लक्ष्य दे। तो पहले आप मनुष्य बने, और मनुष्य बनने के बाद आप किसी एक कला या किसी एक विद्या या किसी एक भाषा में पारंगत हों। तो ये हमारे यहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन वो कहते क्या थे कि आप अपने मूल से जुड़कर चलें, विश्व की आधुनिकतम विद्या का आप अध्ययन करें, इंजीनियरिंग का अध्ययन करें, मेडिकल का अध्ययन करें, साइंस का अध्ययन करें, लेकिन जो आपके जीवन का आदर्श है, जीवन का जो मूल है, उसको लेकर चलें। तो तिष्ठत्येकेन पादेन गच्छत्येकेन बुद्धिमान, ये उनका सिद्धांत था कि वो अपने पैरों को अपनी जड़ों में जमाए रखता है और संसार की जो आधुनिकतम विद्याएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ता है। और जहां तक प्रश्न शिक्षा का है और शिक्षा पर हम विचार कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ साफ कहा गया है अधीति बोधा चरण प्रचारणे ही। सबसे पहले आप अधीति अध्ययन करिए। और ये बात महर्षि दयानंद जी के जीवन से प्रमाणित होती है कि अधीति ही अर्थात गुरुमुखाद अध्ययनम, से पहले हम गुरु से अध्ययन करें, उसके बाद उसका बोध करें। बोध शब्द का अर्थ है उसको अपने चित्त में स्थापित करें, चित्त में उसको दृढ़ता पूर्वक स्थापित करें। फिर उसके बाद जब हम उसको व्यवहार में ले आते हैं, आचरण में ले आते हैं, तब हमको उसकी शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो जब तक हम अधीत विद्या को आचरण में नहीं लाते, तब तक हम उसके एक शिक्षक नहीं बन सकते, उसका प्रचार करने का अधिकार हमको नहीं मिल सकता। ये 4 अवस्थाएं हैं हमारे यहाँ शिक्षा की, अधीति, बोध, आचरण और प्रचार। ये बात आप दयानंद सरस्वती जी के जीवन से स्पष्ट परिलक्षित कर सकते हैं। अधीति बोधाचरण प्रचारणे ही दशाश्च तस्य प्रणयन उपाधिभिः, ये हमारे यहाँ नैषधीय चरित में ये पद्य हमारे यहाँ प्राप्त होता है। और जहां तक प्रश्न वेद के व्याख्यान का है,
तो वेद के व्याख्यान में तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुः तस्माद् अजायत। जब इस मंत्र पर हम विचार करते हैं और ये संपूर्ण वेद राशि के आविर्भाव का इसमें लक्ष्य करके इस मंत्र की रचना ऋषि करते हैं। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया कि उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया कि स्वामी दयानंद एम्प्लॉयड द साइंटिफिक मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द नैरुक्त स्कूल ऑफ व्याकरण थ्रू आउट हिज वैदिक भाष्य। तो नैरुक्त स्कूल जो था व्याकरण का, इसलिए कभी कभी विद्वानों के साथ चर्चा होती है काशी में, तो वो दयानंद सरस्वती जी के लिए कुछ विपरीत बात कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो बड़े ही समर्थन के शब्द भी कहते हैं कि नहीं। तो जब आप अध्ययन करेंगे तो आप उसकी वास्तविकता से परिचित होंगे। तो जब उन्होंने नैरुक्त स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया और एक साइंटिफिक मेथड प्रस्तुत किया वेद भाष्य का, तो इसमें हमारा कहीं विरोध नहीं घटित होता। और जो दोषपूर्ण व्याख्यान किए गए थे पाश्चात्यों के द्वारा या भारतीय परंपरा में भी जो अंधानुकरण किया गया था या अंधविश्वास के आधार पर किया गया था व्याख्यान, उसका उन्होंने खंडन किया। तो यहाँ पर जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने इसके लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पर ध्यान नहीं दिया, और वो क्या कहते हैं कि मैकडॉनल्ड इसका एक यज्ञ का अर्थ करते हैं सेक्रीफाइस, और फ्रॉम दैट सेक्रीफाइस कंप्लीटली ऑफर्ड। तो फ्रॉम दैट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस शब्द का उन्होंने, सेक्रीफाइस शब्द जो उनकी भाषा में था एक सीमित अर्थ को देने वाला, उसको वहां उन्होंने रख दिया। आगे जब ग्रिफिथ आते हैं तो उन्होंने थोड़ा इसमें परिष्कार किया और कहते हैं कि फ्रॉम दैट ग्रेट जनरल सेक्रीफाइस, लेकिन सेक्रीफाइस को उन्होंने भी नहीं छोड़ा। तो सेक्रीफाइस शब्द एक विवादित शब्द है जिसको यदि आप के अर्थ में लेते हैं तो, लेकिन इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो निरुक्त में हम देखते हैं तो वहां पर यज्ञात शब्द का अर्थ किया है यजनीयात, और सर्वहुतः का अर्थ किया है सर्वैहि हूयमानात, सभी के द्वारा स्तूयमान, और यजनीयात। तो अंग्रेजी में यदि हम इस देखते हैं तो इसका अर्थ होगा फ्रॉम दैट एडोरेबल एंड यूनिवर्सली इन्वॉल्व्ड गॉड, अर्थात जो उपास्य देवता है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में विराजमान, उस उपास्य देवता की ओर यहाँ पर ऋषि ने संकेत किया है। और यज धातु का जब हम निरुक्त में देखते हैं अर्थ, तो वहां है देव पूजा संगति करण दानेषु। तो जो व्यक्ति इन निरुक्तियों से परिचित नहीं था और इन निरुक्तियों से परिचित न होकर जिन्होंने वेद का भाष्य किया और वेद का अर्थ का अनर्थ किया, उसको महर्षि दयानंद जी ने पकड़ा और एक नया लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एक तार्किक व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया जो सर्वमान्य था। और मनुस्मृति में यदि हम जाते हैं तो वहां भी यही बात मिलती है, दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। उस परम सत्ता से हमने ऋग्यजु साम लक्षणम यज्ञ सिद्ध्यर्थम दुदोह, उस ज्ञान को हमने परम सत्ता से प्राप्त किया। महर्षि दयानंद जी इन सब इंटरप्रिटेशंस को जो हमारे भारतीय और या नैरुक्तिक इंटरप्रिटेशन से इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्रातिशाख्यों का अध्ययन किया, शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन किया, और वहां पर यज्ञ शब्द का अर्थ जो यज्ञो वै विष्णु मिला था उसको उन्होंने अप्लाई किया और कहा कि वेवेष्ट सर्वम व्याप्नोति चराचरम जगत सह विष्णु, जो संपूर्ण चराचरात्मक को प्राप्त करके उपस्थित है, विराजमान है, उसको विष्णु कहा जाता है। तो यहाँ यज्ञ शब्द विष्णु का शब्द है, अर्थात जो ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। मैं काशी से हूँ, में भगवान शंकर की उपासना की जाती है, लेकिन किस रूप में? भगवान शंकर की उपासना हम करते हैं अष्टमूर्ति के रूप में। एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ होता है कि ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है या नहीं, तो कहते नहीं दिखाई देता, लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किस रूप में? तो 8 मूर्तियों में।
तो 8 मूर्तियां कौन है? तो उसमें पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनमें से किसी एक को भी यदि हटा दें तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और 2 हैं ज्योतियां, एक है सूर्य है और एक है चंद्रमा, जो हमारे काल के नियामक हैं। तो 5 और 2 7, और चौथी 8वां है आपका चैतन्य, आत्मा। और वेदांत में यदि आप जाएंगे तो वेदांत में चैतन्य के स्तर पर किसी का भी कोई विभेद नहीं किया गया है। और वेदांत पूरा का पूरा वेदांत या पूरी की पूरी उपनिषद कहती है कि आप अपनी आत्मा का विस्तार कीजिए। आत्मा के विस्तार का अर्थ क्या है? कि आप स्वयं को अन्य में देखिए या अन्य में स्वयं को देखिए। ये है आपकी आत्मा का विस्तार। तो इस प्रकार की बातें हमारे यहाँ उपनिषदों में कही गई हैं। तो हम अष्टमूर्ति शिव के उपासक हैं। भगवान शंकर किस रूप में हमारे सामने वस्तुतः? भगवान शंकर हमारे सामने इष्ट 8 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। तो ये बात भी वेवेष्ट सर्वम व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। यदि हम इस व्युत्पत्ति को लेके चलते हैं और यज्ञो वही विष्णु, ये जो शत्रु ब्राह्मण का वचन है, इसको लेते हैं, तो जो सैक्रिफाइस को माना था या जो अन्य सीमित अर्थ किए थे यज्ञ शब्द के, उन सारे शब्दों का वहां पर निराकरण हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी, मैंने आपके सम्मुख रखी। और आज के इस सत्र में डॉक्टर कांता सोनी जी ने, जो राजकीय महाविद्यालय राजस्थान से, राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं, वहाँ की हिंदी विभाग से हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों का पठन पाठन क्यों किया जाए और क्या उसका महत्व, इस पर बड़ा ही व्युत्पत्ति लभ्य और बड़ा ही महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का स्मरण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी से जुड़े हुए थे और काशी के बड़े प्रसिद्ध रचनाकार थे। रामधारी सिंह दिनकर जी का स्मरण किया। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जो बात आपने सम्मुख रखी कि पवित्रवादी प्रचार, वेद का पवित्रतावादी प्रचार, अर्थात किस रूप में स्त्री को एक पवित्र रूप में हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। देखिए, शक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवती की प्रतिमा लगा लें और उसके सामने गाना बजाना करें, वो भी एक प्रकार है हमारी अभिव्यक्ति का। लेकिन शक्ति की उपासना का तात्पर्य है अपने सामर्थ्य की वृद्धि। और सामर्थ्य कहाँ प्रतिष्ठित है? सामर्थ्य प्रतिष्ठित है आपकी पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों और मन, बुद्धि और अहंकार में। यही आपकी शक्ति है। तो जिन उपायों से पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों और मन, बुद्धि, अहंकार का सामर्थ्य बढ़े, उन उपायों को किया जाना, उन सदाचार पूर्ण जीवन पद्धति को अपनाना ही हमारे यहाँ वस्तुतः शक्ति की उपासना मानी जाती है। ये हमारे यहाँ शक्ति की उपासना का लक्ष्य है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो इन सब बातों को आपने प्रस्तुत करा, बड़ा ही व्युत्पत्ति लभ्य आपका शोध पत्र था। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और विक्रम शेखावत जी ने, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के विद्यार्थी हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को आधुनिक शिक्षा में कैसे लाया जाए और उसके किन किन अंशों का अध्ययन अध्यापन किया। तो शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ब्रह्मचर्य इत्यादि की दृष्टि से आपने इसको प्रस्तुत किया। देखिए, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन जो शिक्षावल्ली है हमारी तैत्तिरीय उपनिषद की, उसको केवल एक रिचुअल मत बनाइए। हमारे यहाँ दीक्षांत तो होता है, उसमें जो चांसलर या वाइस चांसलर जो खड़े होते हैं, वो खड़े होकर उसका पाठ कर देते हैं। विद्यार्थी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। और कहीं कहीं तो केवल इसका ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है, और कहीं हिंदी ट्रांसलेशन, और कहीं तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है। कोई ये नहीं समझता कि हमें इसका मूल संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसके पीछे छपी हुई भावना क्या है उसको पढ़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ वेद मनुच्य आचार्यो अंते वासिल मनुषास्ति, सबसे पहला वचन है सत्यम वद, फिर है धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? जो आपका परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, उस परंपरा से प्राप्त ज्ञान की आप रक्षा करें।
भारतीय संविधान के लागू होने के पहले एक पिता के बाद पुत्र को उस शासकीय दायित्व में जोड़ दिया जाता था। यदि वो पटवारी है तो पिता के बाद पिता रिटायर हो रहा था तो उसके परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र था उस ज्येष्ठ पुत्र को पटवारी बना दिया जाता था। वहां कोई सिलेक्शन नहीं होता था। इसमें कारण क्या था? क्योंकि उसने परंपरा से अपने घर का ज्ञान, अपने घर की विद्या को अर्जित किया होगा और वो अधिक कुशलता से इस कार्य को कर सकेगा। बाद में भारतीय संविधान लागू होने के बाद ये सब बातें हमारे यहाँ आई। तो स्वाध्यायान्मा प्रमदः और आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसीहि। हमने संसार से भागने का उपदेश नहीं दिया। संन्यास हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श अभ्युदय है और उस अभ्युदय का मंत्र इसमें छिपा हुआ है। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसीहि। गृहस्थ को आधार माना गया हमारे यहाँ तीनों आश्रमों का, ब्रह्मचर्य का भी और वानप्रस्थ का भी और संन्यास का भी। गृहस्थ आधार है। गृहस्थ को कभी हमने गर्हित नहीं माना। उसको आदर्श पूर्ण सुखमय अभ्युदय की प्राप्ति, निश्चय को लक्ष्य करके अभ्युदय की प्राप्ति का एक हमने मंत्र माना। सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन ये प्रत्येक व्यक्ति का कार्य था। स्वाध्याय का अर्थ है जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको आपको पढ़ना है, अनिवार्य है। उसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते, उसके आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, और फिर उसका प्रचार करना भी आपका कर्तव्य है। ये दोनों व्यक्ति थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। आपका ये श्रावणी से लेकर और वसंत पंचमी तक ये स्वाध्याय का पक्ष था हमारा। इसमें गुरुजी पढ़ाते थे, उसको याद कराते थे, उसको अभ्यास कराते थे, और 5 दिन का अवकाश करके वसंत पंचमी के बाद से लेकर पुनः श्रावणी पर्यंत प्रवचन होता था। प्रवचन से तात्पर्य क्या है? जो पढ़ाया उसको सुनते थे। जो पढ़ाया शिष्य को उसको गुरु उससे सुनता था। तो उससे होता क्या था कि उसके अंदर वो विद्या जीवित रूप में प्रतिष्ठित होती थी। हमारे यहाँ कभी भी वन वे ट्रैफिक नहीं रहा कि गुरुजी बोल रहे हैं, विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्वाध्याय और प्रवचन का ये अर्थ था कि श्रावणी पर्व अर्थात आपकी श्रावणी से शुरू किया आपने और वसंत पंचमी के पहले तक आपने स्वाध्याय किया, गुरुजी के मुख से सुना, याद किया। गुरुजी ने याद किया। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू टीच हिज स्टूडेंट। और फिर उसके बाद it was the responsibility of the teacher that how much he has grasped, उसने कितना पढ़ा, and how much he can interpret it for the welfare of the society। तो वो प्रवचन का अर्थ ये नहीं कि गुरुजी बोल रहे हैं। वो प्रवचन का अर्थ है जो विद्यार्थी ने सुना उस विद्यार्थी से गुरु सुनता था और उसका परिष्कार करके फिर समाज में भेजने योग्य उसको तैयार करता था। तो ये सब हमारे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये सब वचन हमारे यहाँ थे। और श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, संविदा, और अंत में क्या कर दिया? एष आदेशः। ये संविधान है, आदेश है, ऑर्डर है। जैसे कोर्ट से ऑर्डर पास होता है वो पूरी व्यवस्था उसको लागू करने के लिए लग जाती है। पूरा प्रशासन उस कोर्ट के आदेश को तामील करने के लिए लग जाता है। तो एष आदेश है, एष उपदेश है, यही एक आदर्श वचन है। एषा वेदोपनिषद, यही वेद का रहस्य है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, एवं चेतद उपासितव्यम। और इसमें फिर उन्होंने तबियत प्रत्यय लगा दिया। तो ये हमारे यहाँ जो शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे किसी का हो, उसको ये याद होनी चाहिए। इसको एक औपचारिकता मात्र हमें सीमित नहीं रखना चाहिए, तब तो ये व्यवहार में आएगी। अन्यथा वो उसको औपचारिकता मानकर छोड़ देगा। तो शिक्षा के विषय में जो विक्रम शेखावत जी ने हमारे सामने विचार प्रस्तुत किए, इन में ये बातें जोड़नी चाहिए। मैं दोनों ही शोधकर्ताओं को जिन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया साधुवाद प्रदान करता हूँ, और आदरणीय प्रोफेसर विप्रकाश आर्य जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस
विशाल मंच पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, और ऐसे इतने सीनियर विद्वान जो कि भारतीय परंपरा से जुड़कर अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच मुझको अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर दिया। मैं आदरणीय प्रोफेसर विकास आर्य जी को, जो सभी जुड़े हुए विद्वान और विद्यार्थी हैं, सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपने को चेयरपर्सन कोमल चंद्र राधा किशन जी को भी प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Thank you, Professor Sadashiv Dwivedi ji. You have given a very elaborate lecture, and you, I think, explained everything regarding the Veda Bhashya of Swami Dayananda, regarding his conceptions on different aspects. And you told that his Veda Bhashya was also based upon some scientific interpretations. It was not his own interpretation, but he borrowed it from the ancient interpreters and placed it before the public. Whatever was done through by foreigners or other ancient scholars, which were not conforming to the Nirukta or Brahmanas or Upanishads. So he tried to confound them. He tried to refute them. And you also told a very beautiful interpretation of Yato Abhyudaya Nishraya Hetu, means whatever material gain we are doing, but this must be conforming to the spiritual upliftment. Then only this whole system is connected. So the entire Vedic system, the entire philosophical system of India is interconnected, and one thing is going to promote the another thing. Because the time is going short, so I'm not going to explain it further.